السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم تھا کہ آج 9 بجے درود شریف کی فضیلت اور اہمیت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان جامعہ سمدیہ کے استاد حضرت علامہ مولانا احکام علی چشتی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ ہم حضرت سے انشاءاللہ درود شریف کی فضیلت پر گفتگو کریں گے اور حضرت سے درود شریف کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت آپ دوسری مرتبہ ہماری لائیو پر تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس سے قبل ہماری ایک لائیو ویڈیو جو کونوں سے متعلق تھی، ناظرین کرام نے دیکھی تھی، وہ کافی پسند آئی لوگوں کو، اور ہم اس وقت دوسرا ایک پروگرام نشر کر رہے ہیں لائیو اپنے اس چینل کے ذریعے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے حضرت کہ درود شریف کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ مخدوم گرامی منزلت شہزاد والا مرتبت حضرت علامہ مولانا سید محمد مظفر میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ النورانی نے ابھی اس حقیر ناتوا سے درود شریف سے متعلق سوال پیش کیا کہ درود شریف کے کچھ فضائل و اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ تو حضرات، درود پاک یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ ایسی عظیم اور اہم عبادت ہے جس کی بے شمار بے حساب جس پر اجر و ثواب ہے، اور جس کی بے شمار فضیلت و اہمیت احادیث طیبہ میں آئی ہوئی ہے۔ حضرات، درود پاک پڑھنا بڑی سعادتوں اور برکتوں کا حامل ہے۔ درود پاک پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت کی سرفرازیوں سے مالا مال ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہرور ہوتا ہے، بڑی فضیلتیں پاتا ہے، درود پاک پڑھنے پر بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ سر دست میں درود پاک پڑھنے پر احادیث طیبہ کی روشنی میں چند فوائد پیش خدمت کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں 2 چیزیں آئی اس حدیث پاک میں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا بہت عبادت ہے، اچھی بات ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کا جو صلہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا اور جو اجر بتایا گیا، وہ اجر کوئی معمولی اجر نہیں، بلکہ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دنیا اور آخرت کی سب سے عظیم ترین اجر ہے کہ اللہ رب العزت اس پر درود پاک بھیجتا ہے، اس بندے پر جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا ہے۔ تو حضرات، ایک انسان پر اللہ رب العزت کی طرف سے درود پاک آئے، رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو، خود اللہ رب العزت اس پر رحمتوں برکتوں کے نزول کا اعلان فرمائے، ایک بندے کے لیے اس سے بڑی اور سعادت اور معراج کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، جو اس کو کسی ریاضت و مجاہدے کی بنیاد پر نہیں ملی،
قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل کی بنیاد پر نہیں ملی، بلکہ اس کو اللہ کے محبوب پر درود پاک بھیجنے کے صدقے میں ملی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور بھی دوسری روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، درود پاک بھیجنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور انسان اللہ رب العزت کے بارگاہ کا مقبول بندہ بن جایا کرتا ہے۔ تو یہ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو درود پاک کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک اہم بات میں یہاں پر پیش کر دوں، جو ہماری جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت حضرت علامہ امام سیدی عارف باللہ عبد الغنی نابلسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رسالہ الطلعۃ البدریہ علی القصیدۃ المدریہ میں تحریر فرمایا ہے کہ درود پاک کی یہ برکت میں نے بارہا دیکھے، خود تجربہ کیا کہ اگر کسی شخص کو بخار آیا ہوا ہو اور اس بخار کی تپ اور حرارت کی وجہ سے اس کو بار بار سخت پیاس لگتی ہو، اس پیاس کی حالت میں اگر وہ درود پاک کی کثرت کرے، درود پاک کا ورد کرے، تو درود پاک کی برکت سے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ یہ کتنی عظیم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ اور امام اسماعیل بن یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب افضل الصلوات علی سید السادات میں تحریر فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک واقعہ تحریر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے اپنی آنکھوں سے زیادہ قریب ہو جاؤ، اپنی زبان سے زیادہ قریب ہو جاؤ، اپنے دست و بازو سے زیادہ قریب ہو جاؤ، کیا یہ چیز چاہتے ہو؟ تم اس چیز کو پسند کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار، میں ضرور چاہتا ہوں کہ مجھے تیری بارگاہ میں ایسا ہی قرب حاصل ہو، میں اپنے آنکھوں سے زیادہ تیری بارگاہ میں قرب پر فائز ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تم کو میرے محبوب پر درود پاک پڑھنا پڑے گا۔ اگر یہ مقام چاہتے ہو، یہ مرتبہ چاہتے ہو، تو میرے محبوب پر درود پاک کی کثرت کرو، تمہیں یہ مقام مل جائے گا۔ تو اس سے ناظرین اندازہ کر سکتے ہیں کہ درود پاک کتنی بابرکت چیز ہے۔ یوں تو درود پاک ایک بحر ناپیدا کنار ہے جس کی فضیلت و اہمیت پر اگر کئی شب گزار دی جائیں، کئی دن گزار دیے جائیں، مہینے اور سال گزار دیے جائیں، تب بھی اس کی فضیلت و اہمیت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ سر دست میں اتنا ہی اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس عنوان پر۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ درود شریف کتنی فضیلت ہے اس کی اور کتنی اہمیت ہے، اور جو وہ شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو حضرت یہاں پر کچھ سوالات ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ درود شریف پڑھنا کیا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ درود شریف کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، دوسرا سوال ہمارے حضرت مخدوم گرامی منزلت کا یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا کیا فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے، کیا ہے؟ تو اس تعلق سے علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں تحریر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے، اس سلسلے میں 10 مذاہب ہیں۔ ان 10 مذاہب میں 10 مذاہب تو بہت سے علماء کے متعدد علماء نے اپنے اپنے طور پر مذہب تحریر فرمائے ہیں اور مذہب اختیار کیا ہے، لیکن ان مذاہب میں 3 مذاہب نہایت عمدہ اور مضبوط ترین مذہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے
इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और दीगर चंद अइम्मा का, इमाम औज़ाई का, इमाम सुफियान सौरी का, इन हजरात का मजहब इस सिलसिले में ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जिंदगी में एक बार दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। यानी अगर चाहे वो नमाज में पढ़ ले, चाहे वो खारिजे नमाज पढ़ ले, तो इस वाजिब पर वो अमल करने वाला करार पाएगा और इस वाजिब पर अमल हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम नबी पर दुरूद पाक पढ़ो और खूब खूब सलाम पढ़ो। तो इस अमर पर अमल करने के लिए कम से कम अपनी जिंदगी में एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना हर बंदे मोमिन पर वाजिब है। और उसके बाद जब भी कभी सरकार का जिक्र आए, नाम पाक का जिक्र किया जाए, तो फिर उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है, सुन्नते गैर मुअक्कदा है। और दूसरा मजहब ये है, जो इस मजहब वालों ने भी बड़ा पुरजोर मजहब तहरीर फरमाया है और बहुत ही दलाइल फराहम करने की कोशिश किया है। मैं समझता हूँ कि इनका जो मजहब है, जो अव्वलीन जमात का जो मजहब है, वो दलाइल और उसूल पर मबनी है, और ये जो दूसरा वाला मजहब आ रहा है, ये मजहब अकीदत और इश्क पर मबनी है। मैंने ये महसूस किया उनके दलाइल को देखकर। उन्होंने फरमाया, दूसरे मजहब वालों ने कहा कि जिंदगी में एक बार नहीं, बल्कि जब जब सरकार का नाम पाक का जिक्र किया जाए, जब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, तो दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। हर वक्त जब भी जिक्र किया जाए तो दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। इश्क यही कहता है, ये इश्क यही कहता है, उनका तकवा यही कहता है कि वाजिब होना चाहिए। उन्होंने फरमाया, आगे इस पर गुफ्तगू करते हुए तहरीर किया कि हर चंद कि मुझे मालूम है कि अम्र मुख्तज़ी तकरार नहीं होता है, एक अम्र हर जगह मुख्तज़ी तकरार नहीं है, लेकिन ये मकाम ऐसा मकाम है कि यहाँ पर अम्र को मुख्तज़ी तकरार माना जाए, मुख्तज़ी तकरार तस्लीम किया जाए, और इसमें कोई नक्स नहीं है, बल्कि इसमें भलाई ही भलाई है, खैर ही खैर है। तो उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ के तायद में कहा कि इस अम्र को तकरार पर महमूल किया जाए, और दूसरी वो तमाम अहादीस लेकर के पेश किया जिसमें कहा गया है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुने और दुरूद पाक न पढ़े, वो बहुत बड़ा बखील है, उसके नाक गुबार आलूद हो, वो क्या कहते हैं, वो ज़ियाकार है, नुकसान उठाने वाला है। इस तरह की अहादीस तय्यबा में वईद आई है। वो तमाम अहादीस को जमा करके हजरात ने फरमाया कि इन अहादीस का तकाजा ये है कि जब भी रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाए तो वहां पर दुरूद पाक पढ़ना वाजिब हो जाता है। ये दूसरा मजहब है। मैं समझता हूँ कि ये अकीदत और इश्क पर मबनी है, और पहला वाला मजहब उसूल पर मबनी है। तीसरा मजहब ये है कि ना ही जिंदगी में एक बार पढ़ना वाजिब है, और ना ही ये कि जब जब सरकार का नाम पाक जिक्र किया जाए तो पढ़ना वाजिब है, बल्कि मामला ये है कि एक मजलिस में एक बार अगर सरकार का जिक्र एक मजलिस में जितनी बार सरकार का नाम पाक पढ़ा जाए, जिक्र किया जाए, तो सब के लिए एक बार दुरूद पाक पढ़ देना काफी है। अगर एक मजलिस में आदमी बैठ रहा है और चंद बार वो सरकार का नाम पाक वहां पर लिया जा रहा है, तो सब के एवज में एक बार सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ देना, ये उस वाजिब की अदायगी के लिए काफी है, यही वाजिब है। तो ये तीन मज़ाहिब हैं। इससे नाज़रीन को अंदाजा हो गया होगा कि फिल जुमला जिंदगी में एक, चूंकि हम हनफी हैं और हमको मसला भी अपने मजहब, अपने इमाम के मुताबिक बयान करना है, इसलिए हनफी मजहब के मुताबिक मैं कहूँगा कि जिंदगी में एक बार दुरूद पाक पढ़ना ये वाजिब है। और तकवा ये है, परहेजगारी ये है, तकाज़े इश्क ये है कि जब भी रसूलुल्लाह का जिक्र हो तो दुरूद पाक पढ़ा जाए। कोई इसमें खराबी भी नहीं है, सवाब ही सवाब है। बेशक बेशक, इसमें कोई नक्स, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही फायदा, खैर ही खैर है। जी हजरत, जैसे सुना गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह ये दुरूद पाक था, महर जो उनका था ये महर था कि महर वो दुरूद पाक पढ़ना, तो इसके बारे में रहनुमाई फरमाए कुछ। जी बेशक, हजरत आदम आपका अक्द हो गया हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से,
अलैहिस्सलाम से। तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना तसर्रुफ़ ज़ौजियत करना चाहा और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से कुर्ब चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ममानियत आई, मना फरमाया गया कि आदम तुम अभी इस अमल को अंजाम नहीं दे सकते हो, इसके लिए तुम्हें हव्वा के निकाह का महर अदा करना होगा। तो आपने फरमाया परवरदिगार हव्वा के महर का क्या होगा, उनके महर में क्या चीज की अदायगी की जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया कि आदम तुम हव्वा के महर अपने हाशिया उम्दतुर रिआया में किताबुन निकाह में तहरीर फरमाया है। अच्छा, हमारे नबी का नाम जब आए और कोई ऐसा शख्स हो जो दुरूद पाक ना पढ़े नाम सुनकर, तो उसके बारे में क्या हुक्म है शरीयत का? बहुत सरकार का ये सवाल बहुत उम्दा, बहुत शानदार है और निहायत मुफीद और कारआमद है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुनते हैं और गफलत का शिकार होते हैं और दुरूद पाक नहीं पढ़ते हैं। इस बारे में उलमा ने फरमाया कि वो शख्स निहायत ही महरूम और बदकिस्मत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का नाम पाक सुने और उस आप पर दुरूद न पढ़ सके। ये वो बहुत ही बदकिस्मत इंसान और महरूम है। अलबत्ता चूंकि हमारे मुफ्ताबी मजहब में इमाम आजम के नज़दीक जब जब नाम पाक सुना जाए तो वाजिब नहीं है, इसलिए वो गुनाहगार तो करार नहीं पाएगा, लेकिन यही उसकी महरूमी क्या कम है कि वो एक बहुत बड़ी नेमत से दूर हो रहा है और एक बड़ी अजीम नेमत से वो उसका हाथ खाली हो रहा है। इसलिए जब भी सरकार का जिक्र किया जाए तो हमारी सआदत और हमारी खुशकिस्मती ये है, तकवा और परहेजगारी ये है और रसूलुल्लाह से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम दुरूद पाक का विरद करें, उस विरद सरकार पर दुरूद पाक भेजें। हज़रत जी, एक चीज यहाँ पर और मैं जिक्र कर दूं जो यहाँ पर पेश कर देना हमारे नाज़रीन के लिए उम्मीद करता हूँ कि जरूर नफा बख्श होगा। कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि तहरीरों में सलाम लिख दिया जाता है, जी जी जी, शार्ट में कभी स्वाद बना दिया जाता है। हमारे उलमा ने इरशाद फरमाया कि इस तरह दुरूद पाक को शार्ट में मुख्तसर में लिखना ये नाजायज है, सख्त ममनू है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बदकिस्मती और महरूमी है कि हम कलम की रोशनी बहाते रहते हैं, सफाहत के सफाहत सियाह कर देते हैं, कागज सर्फ करते हैं, लेकिन कितनी बड़ी बुखालत है कि जब हम रसूलुल्लाह पर दुरूद पाक के लिखने को आते हैं तो हम वहाँ मुख्तसर और सलाम करके निकल जाते हैं, सलाम से इशारा कर जाते हैं। पहली बात तो ये कि सलाम ये लुगत में कोई सेग़े दुरूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पर दुरूद के इससे दुरूद अदा ही नहीं होगा। ये बिल्कुल मुहमल और बेमाना लफ्ज है, इसकी लुगत में सलाम का लफ्ज दुरूद के लिए वज़ा नहीं किया गया है, इसलिए इस सेग़े से दुरूद अदा नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है महरूमी होगी, बदकिस्मती होगी। इसलिए उलमा इकराम ने इस लफ्ज को लिखने से कहने से मना फरमाया है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, तो अल्लाह के दुरूद पढ़ने का मतलब क्या है यहाँ पर? बेशक हमारे हुजूर ने अभी सवाल फरमाया कि कुरान करीम में आया है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और किसी के भी जहन में सवाल चुभ रहा होगा, उलझन हो रही होगी कि आखिर हम तो दुरूद पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह के महबूब पर दुरूद भेजने का क्या मतलब है। तो इस हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुत तफसीर में अबुल आलिया का कौल नकल फरमाया है। अबुल आलिया फरमाते हैं कि अल्लाह का अपने महबूब पर दुरूद भेजने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के मजलिस में अपने महबूब की तारीफ तौसीफ फरमाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुरूद नाजिल फरमाने, दुरूद भेजने का मतलब यह कि अल्लाह अपने महबूब के अपने फरिश्तों के दरमियान जिक्र हसन करता है, उनकी तारीफ तौसीफ फरमाता है और रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। ये दुरूद अल्लाह के दुरूद भेजने का मतलब है। और जो ये भी कहा गया उसमें कि मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं, मलाइका दुरूद भेजते हैं, तो मलाइका के दुरूद भेजने का मतलब ये है कि वो अल्लाह से महबूब पर नुज़ूल रहमत की दुआ करते हैं। तो ये मतलब है अल्लाह के
महबूब पर दुरूद भेजने का और मलाइका के दुरूद भेजने का। और यहाँ एक बात ये भी आ जाती है कि आम बंदों के दुरूद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का क्या मतलब है, ये चीज भी यहाँ पर वाज़ेह कर दिया जाए ताकि तीनों चीजें वाज़ेह हो जाए और किसी तरह की कोई उलझन न हो। उलमा ने तहरीर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दुरूद पाक भेजने का मतलब मजालिस मलाइका में अपने महबूब का की तारीफ व तौसीफ करना, मलाइका का दुरूद पाक भेजने का मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत से नुज़ूल रहमत की दुआ करना, और बंदों का अपने महबूब पर दुरूद पाक भेजने का मतलब यह है कि अपने महबूब अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की बुलंदी, रहमतों और बरकतों के नुज़ूल के लिए दुआ करना, आपको मकाम महमूद पर फायज करने की दुआ करना, ये दुरूद पाक, ये बंदों की दुरूद भेजने का मतलब है। एक मरतबा एक सहाबी रसूल ने आका अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो आप पर सलाम भेजने का तरीका जानते हैं कि हम आपसे मिले तो कहें अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, लेकिन दुरूद भेजने का क्या तरीका है मैं इसको नहीं जानता हूँ, हुजूर इसको बता दें। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर दुरूद भेजने का तरीका यह है कि तुम यूं लब कुशा हो, तुम यूं पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पूरा दुरूद पाक आका अलैहिस्सलाम ने बताया कि तुम इन सेगों को अदा करो, ये इसी से मुझ पर दुरूद हो जाएगा। और इस सेगों में है क्या, उलमा ने फरमाया कि इन सेगों में क्या है, सल्ले ये अम्र है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, दुआ है। तो हासिल कलाम ये हुआ कि महबूब पर नुज़ूल रहमत और दर्जात की बुलंदी, बरकतों के नुज़ूल के दुआ करना, यही दुरूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तालीम दी। कसरत से दुरूद पढ़ने का क्या मतलब है, इस बारे में थोड़ा सा रहनुमाई फरमाइए। जी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबू दाऊद में बाबू सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल जुमा में इसका जिक्र किया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अक्सरू अलैया सलात यौमुल जुमुअती, मुझ पर तुम जुमा के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। और दीगर रवायात में भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म आया है, तालीम आई है, तरगीब आई है। इस हवाई नुक्ते पर भी उलमा ने बाकायदा बहसें की है और सफ़हात के सफ़हात तहरीर किए हैं और बाकायदा इसका माना मुतय्यन किया। इसमें भी मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ नज़रियात सामने आए हैं। कुर्बान जाइए हमारे उलमा इकराम पर, साबिक़ीन अव्वलीन मुहक्किकीन पर, कौन हजरात ने शरीयत इस्लामिया के गोशे गोशे को बिल्कुल वाज़ेह और रोशन कर दिया है। शरीयत का, दीन का कोई भी गोशा ऐसा नहीं बाकी रहा जिसमें उन्होंने कुछ छोड़ रखा हो, बल्कि सब कुछ जबरदस्त तरीके से वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया है। तो उलमा इकराम ने फरमाया कि जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का ये हुक्म है हदीस में, एक बुनियादी बात इसमें यह है कि कसरत की कोई अदद मुतय्यन नहीं है वाजिबी तौर पर कि इस अदद में, इस तादाद में दुरूद पाक पढ़ा जाए तो वो दुरूद कसीर कहलाएगा, और अगर इस तादाद में ना पढ़ा जाए तो वो कसीर नहीं कहलाएगा। ये कोई शरीयत मुतहरा में, हदीस कुरान में इस तरह या रसूलुल्लाह के इरशाद में ऐसा कोई बयान नहीं आया है। अलबत्ता उलमा इकराम ने तहरीर फरमाया, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल इरशाद फरमाया कि सहल बिन साद फरमाया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने का हुक्म आया है, और इस कसरत का मेरे नजदीक कम से कम दर्जा, अलल अकल इसका दर्जा यह है कि कम से कम 700 मरतबा सरकार पर दिन में दुरूद पाक पढ़ा जाए और 700 मरतबा रात में दुरूद पाक पढ़ा जाए। ये हमारे उलमा सालिहीन और उलमा रब्बानियीन का इरशाद है। जाहिर सी बात है, इन हजरात का जो इनके इरशादात होते हैं वो भी बहुत ही अहम होते हैं, बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो इस इरशाद की रोशनी में मैं कह सकता हूँ कि कम से कम
700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया जाए दिन में और 700 मरतबा पढ़ लिया जाए रात में, तो इस पर जरूर कसरत का इतलाक हो जाएगा। एक और इमाम का कौल उन्होंने जिक्र किया जिसमें आया, उन्होंने फरमाया कि दिन में 350 अगर पढ़ लेता है और रात में 350 मरतबा दुरूद पाक विर्द कर लेता है तो फिर इस पर भी कसरत का इतलाक हो जाएगा। तो इन बुजुर्गों की, दोनों बुजुर्गों की इरशाद के मुताबिक मैं समझता हूँ कि अगर कसरत के अकल्ले दर्जा, कम से कम दर्जा पर अमल करना है तो 350 मरतबा रोजाना दिन में और 350 मरतबा रोजाना शाम को जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई पढ़ लेगा तब भी ये भी दुरूद शरीफ है, इतना बड़ा पढ़े तब भी? बेशक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर इतना ही सेवा अदा कर लेता है तब भी दुरूद पाक हो जाएगा। ये मुकम्मल दुरूद है, इसमें दुरूद में कोई नक्स नहीं है। अलबत्ता यहाँ यह अर्ज करना चाहूंगा कि मुख्तसर अंदाज में सेवे ऐसे इख्तियार किए जाएं जिसमें जामियत हो और मानियत हो, कि मुख्तसर तरीके पर सभी चीजें आ जाए। मसलन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, आपके आल पर सहाबा पर सब पर हो गया, सेगा भी मुख्तसर है और सब पर दुरूद पाक पहुंच गया। एक बार फिर बोल दें, हमारी नाज़रीन सुन लें ताकि वो दुरूद याद कर लें, ये वाला दुरूद, इसका विर्द करते रहा करें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ये दुरूद पाक है, इसका विर्द करें और कसरत से करें। जी जी, इंशाअल्लाह इसके साथ है दुनिया और आखिरत में हमको जी। दुरूद में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना कहना कैसा है? बाज लोग कहते हैं कि दुरूद शरीफ के अलावा आपको सैयदना कहने पर सरकार ने नाराजगी का इजहार फरमाया। क्या ऐसी कोई हदीस है या कुछ ऐसा है तो हमारी नाज़रीन को बताएं। जी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक में सैयदना कहना, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन, बाज़ जगह पर लिखा होता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, बाद में सैयदना नहीं होता है। तो इस पर बाज़ हज़रत ने, जैसा कि हमारे हजरत ने शुबा पेश किया कि बाद लोगों को शुबा होता है कि सरकार को दुरूद में सैयदना नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि बाज़ औक़ात सरकार ने सैयदना, अपने को सैयदना कहकर पुकारने को नापसंद फरमाया, इजहार नाराजगी फरमाई इस पर। तो फिर दुरूद में सैयदना आपको कैसे कहा जा सकता है? तो इस हवाले से इस पर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी ने या सैयदना कहकर पुकारा तो आपने इजहार नाराजगी फरमाई और फरमाया कि मुझे सैयदना न कहो। ये हदीस मशहूर है, लेकिन उलमा इकराम ने इसकी तवजीह बयान की कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर सैयदना कहने से मना फरमाया और इजहार नाराजगी फरमाई, उससे मकसूद अलल इतलाक सैयदना कहने से मना करना मकसूद नहीं था, इसलिए कि वो एक खास मौका था जहां पर आपने मना फरमाया। वो इस तौर पर कि वहां पर कहने वाले के या सैयदना कहने में कुछ बूए तमल्लुक नजर आ रहा था, कुछ बूए चापलूसी नजर आ रही थी, जैसे ऐसा लगे कि ये सामने वाला, जब महसूस हो जाता कि सामने वाला हमारे मुंह पर तारीफ करना चाहता है, खुश करना चाहता है, दिल से नहीं कह रहा है, सिर्फ हमको हमारी मुंह पर तारीफ करके हमको एक खुश करना चाह रहा है, उसमें लेना चाह रहा है, तो फिर आदमी अपनी तारीफ को मना करता है। इस तौर पर सरकार ने उसको महसूस किया कि कहने वाला हमको सैयदना सिर्फ एक तमन्नुक के तौर पर कह रहा है, ये तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मना फरमाया उसको, वो आपने उस वक्त इजहार तवाज़ु और आजिज़ी के तौर पर उसको मना किया, वो तमन्नुक महसूस करते हुए मना किया। वरना दूसरी अहादीस तैयबा में खुद मेरे हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना सय्यदु वुल्दे आदम, मैं आदम तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ। खुद आका अलैहिस्सलाम ने अपने को सैयद फरमाया, सैयद कहा। और एक दूसरे हदीस पाक में एक दूसरे सहाबी के लिए आपने इरशाद फरमाया, कुमू लिसय्यदिकुम, तुम अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। तो जहां सहाबी को सैयद कहना, सरदार कहना दुरुस्त हो, खुद सरदार फरमाए, तो फिर आका अलैहिस्सलाम को सैयद क्यों नहीं कहा जा सकता है? ये बिल्कुल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना कहना, सैयदना कहा जाना दुरूद पाक में बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। और ना सिर्फ ये जायज और दुरुस्त है बल्कि गायत अदब और ज्यादा अदब इसी में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना के ताल्लुक से उलमा इकराम ने तहरीर फरमाया कि एक अदब का रास्ता है और एक रसूलुल्लाह के अम्र को और सेगे को अदा करने का रास्ता है।
کہ سرکار نے جو صیغہ استعمال فرمایا ہے وہ صیغہ استعمال کیا جائے. تو یعنی سرکار کے امر کی بجاوری ہے ایک، اور ایک ہے راہ ادب اختیار کرنا. تو یہاں پر راہ ادب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا لگا دیا جائے. تو اگر ادب کا راستہ اختیار کرنا ہے تو بہتر ہے، عمدہ ہے، اس کے نیت پر ہے کہ وہ ادب کا راستہ اختیار کرنا چاہتا تو سیدنا لگا دے. اور اگر وہ یہ چاہتا کہ سرکار نے جو صیغے ادا فرمائے ہیں میں انہی صیغے کو ادا کروں گا، اس میں کچھ کمی زیادتی نہیں کروں گا اپنی طرف سے، اگر اس نیت سے درود پاک صرف اللہم صلی علی محمد کہتا ہے تو اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، بالکل یہ بھی پڑھ سکتا ہے. تو آخر میں علماء نے نتیجہ کے طور پر فرمایا کہ ہمیں تو ادب کا حکم ہے بارگاہ محبوب کا اور ذات محبوب کا، اس لیے ہم غایت ادب کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں، اس میں سیدنا کا اضافہ ضرور کریں. یہ بہتر عمدہ راستہ ہے. کوئی درود شریف سے متعلق ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے درود شریف سے متعلق؟ جی، درود پاک میں پہلے بتا چکا ہوں کہ درود پاک بڑی فضیلت و اہمیت کی حامل ہے، اور درود پاک بڑی سعادت والی چیز ہے، بڑی بابرکت چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر انسان کو، ہر بندے کو، ہر مومن کو درود پاک کو ہر وقت کثرت سے اس کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے. صبح و شام، دن میں، رات میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کچھ لوگ سوچتے ہیں حضرت کہ وضو نہیں ہے درود شریف نہیں پڑھ سکتے، تو کیا بغیر وضو درود پڑھ سکتے ہیں؟ جی، یہ بھی بہت عمدہ سوال ہے کہ بعض حضرات کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وضو نہیں ہے تو درود پاک پڑھ کیسے پڑھوں. تو اس حوالے سے اس پر عرض ہے کہ بغیر وضو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا سکتا ہے، جائز ہے، درست ہے. البتہ بہتر اور تقویٰ یہ ہے کہ باوضو ہو کر محبوب کی بارگاہ میں درود بھیجا جائے. لیکن اگر وضو نہیں کہیں تو، اور اتنا وقت نہیں کہ میں درود پاک وضو کر کے درود پاک پڑھوں، تو جیسے ہیں بے وضو ہے تب بھی درود پاک پڑھیں. یہاں تک اگر وہ حالت جنابت میں ہے تب بھی وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، زبان اس کی طاہر رہتی ہر وقت. حالت جنابت ہماری ناظرین شاید نہ سمجھے ہوں، یعنی ناپاکی کی حالت. یہ ناپاکی کی حالت میں، ایسے ناپاکی کی حالت جس سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، اس کو نہانا فرض ہوتا ہے، تو اس حالت میں بھی وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے. درود پاک پڑھنے کی اجازت ہے. تو ناظرین، یہ درود پاک بہت بڑی عبادت ہے. میں اتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان کے قبر کے عذاب کو دفع کر دیتا ہے، اور انسان کے نام اعمال میں بھرے ہوئے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. انسان کو زندگی میں جہاں پر ذلت و رسوائی کا موڑ آ جائے تو وہاں پر درود پاک کی برکت سے اس کی ذلت و رسوائی کو اللہ رب العزت عزت میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے. میں اجازت ہو تو دو چند باتیں اس پر عرض کر دوں کہ ایک بزرگ تھے، وہ انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ تحریر فرمایا. اس واقعے کو بھی علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب افضل الصلوات علی سید السادات میں تحریر فرمایا کہ وہ بزرگ اپنے والد کے ساتھ تشریف لے گئے ایک بار حج کو، اور راستے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا. تو جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے دیکھا چند لمحات کے بعد کہ ان کے والد کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا، بالکل کریہ المنظر ہو گیا، بدصورت ہو گیا. تو انہوں نے فرط افسوس میں اس پر چہرے پر چادر ڈال دی اور وہ خاموش بیٹھ گئے. اسی نیند کی حالت میں ان کو اسی افسوس کی حالت میں وہ غنودگی آ گئی، نیند آ گئی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ان کے والد کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا دست کرم پھیر دیا، دست شفقت ان کے چہرے پر پھیر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دست اقدس پھیرنا تھا کہ ان کا چہرہ
चांद की तरह चमकने लगा, रोशन हो गया। जो चंद लम्हात पहले निहायत सरी और बदसूरत, सियाह और बदसूरत हो गया था, वो निहायत खूबसूरत और हसीन और जमील हो गया। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आपका करम, बड़ा करम हुआ कि आप तशरीफ लाए, मेरे वालिद के इस बदसूरती को ज़ाहिर कर दिया। सरकार, ये करम फरमाई कैसे हुआ मेरे वालिद पर? मुझे भी मालूम है कि मेरे वालिद एक गुनहगार शख्स थे, ये करम बेपाया कैसे आपका? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि हरचंद तुम्हारे वालिद गुनाहगार थे, बहुत गुनाहगार थे, लेकिन इनकी एक आदत थी कि ये चलते फिरते मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करते थे। ये दुरूद पाक की बरकत है कि आज अल्लाह ने इनको ये शरफ बख्शा कि जो इनको जिल्लत तारी हो गई थी, दुरूद पाक की बरकत से, मुझ पर दुरूद भेजने की बरकत से अल्लाह ने वो रुसवाई को इज्जत में तब्दील फरमा दी है। तो इस तरह हर मोड़ पर दुरूद पाक से इंसान को एक इज्जत अफजाई होती है। और किताबों में, सीरत की, सवाने के फजाइल की किताबों में दुरूद पाक के ताल्लुक से इस तरह के बेशुमार वाक़यात है कि जहां पर मरने के बाद इंसान को दुरूद पाक पढ़ने की वजह से अजाब दफा हो गया, मरने के वक्त हालात खराब होना ये दुरूद पाक की बरकत से अच्छे हो गए। बाज गुनहगार इंसान जो जिंदगी में कभी नेकी नहीं किए, लेकिन सरकार पर एक बार दुरूद पाक पढ़ने की वजह से उनको ये शरफ मिला कि पैगंबर को हुक्म हुआ उस वक्त के कि जाइए उस इंसान को आप नहलाइए, धुलाइए, उसकी तजहीज़ व तकफीन फरमाइए। इजाजत हुजूर इस बात को तफसील के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था जो बहुत गुनाहगार था। रातों दिन उसका काम कोई अच्छा नहीं था, गुनाहों में मुब्तला रहता था। तो जब वो मर गया, इंतकाल कर गया, तो लोगों ने उसको बस्ती के बाहर फेंक दिया। कोई उसको दफनाने वाला नहीं, कोई तजहीज़ व तकफीन करने वाला नहीं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि पैगंबर, तुम जाओ और मेरे उस बंदे को लेकर के आओ, उठा करके लेकर के आओ, उसको गुस्ल दो, उसको कफन पहनाओ, उसकी तजहीज़ व तकफीन करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते हैं और उस बंदे को लाते हैं, नहलाते हैं, कपड़े साफ करके उसको उतारते हैं और उसको कफन देते हैं और उसके बाद उसकी तजहीज़ व तकफीन फरमाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, ये बंदा तो हमारी बस्ती में बहुत बदनामी जमाना था, बड़ा गुनहगार था, लोगों ने इसको कभी एक नेक काम करते हुए नहीं देखा होगा, इस तरह कसरत से गुनाह और रिसिया में मुब्तला रहता था। आखिर परवरदिगार का ये करम, ये फजल कैसे इस पे हो रहा है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर सुनो, एक दिन ये तौरात पढ़ रहा था। तौरात को पढ़ते पढ़ते एक जगह पर इसमें ये हमारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया। तो उनका नाम देख करके आप पर दुरूद भेजा इसने, आपके ऊपर आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ दिया इसने। तो जब मेरे महबूब का नाम देख करके आप पर दुरूद पाक पढ़ा, तो उस दुरूद पाक की बरकत से मैंने इसके तमाम गुनाहों को मिटा दिया, मग़फ़िरत फरमा दी इसकी। इसलिए मैंने उस दुरूद पाक की बरकत से इस मकाम, ये मकाम अता फरमाया इसको। तो नाज़रीन समझ गए होंगे कि दुरूद पाक कितनी अहम इबादत है। और एक बार और अर्ज करता चलूं कि हदीस पाक में आया है कि जो शख्स जुमा के में इंतकाल करता है, जुमा के दिन इंतकाल करता है, उसे बगैर उससे कब्र में हिसाब नहीं होता है। और जो शख्स रोजाना सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत करके रात में सोता है, उससे भी कब्र में सवाल नहीं होता है। और एक जो जुमा को इंतकाल करे, जो रोज सूरह मुल्क शरीफ पढ़े, और जो रमजान शरीफ में इंतकाल करे, उससे कब्र में सवाल नहीं थे। ये तीन लोगों की सराहत हदीस पाक में आई है। लेकिन अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने इसी दुरूद पाक की फजाइल की किताब में तहरीर फरमाया कि जो शख्स सरकार पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, उसको भी उस पर भी अल्लाह का ये फजल होगा कि उससे कब्र में सवाल नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन अगर दुरूद पाक की कसरत करें और कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, तो दुनिया व आखिरत की बहुत सारी सादतों से, बरकतों से माला माल होंगे, गुनाह माफ होंगे, दर्जात बुलंद होंगे, रोजी वसी हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह का कुर्ब मिलेगा, रसूलुल्लाह की बारगाह का कुर्ब मिलेगा और दुनिया और आखिरत दोनों जहान में सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत
हम सब को कसरत से सरकार पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, देखा आपने दुरूद शरीफ की फजीलत और अहमियत क्या थी। इस गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखें, और ये दुरूद शरीफ इंशाअल्लाह आपके दुनिया में भी काम आएगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी काम आएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं आए हैं वो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।